what is network devices? Other than the transmission media, many other devices are required to form computer networks. Some of these devices are discussed in this part of the presentation. So when you are using internet, you want to do networking, you want to connect all the computers with each other and do your work. So you will require certain devices like modem, hub, switch, repeater, router, all these devices you will require for doing the networking. So the book I will start from here. For efficient working of any network, many devices are required. Some of the common network devices are discussed below. Modem. Now first is your modem. Full form is your modulator, demodulator. Is a peripheral device that enables a computer to transmit data over telephone or cable lines. The computers operate digitally using binary language, a series of zeros and ones, but transmission mediums are analog. The digital signals, when passed from one value to another, there is no middle or halfway point. It's all or nothing, 1 or 0. Conversely, analog does not change per step. It covers all the values, so you can have 0, 0.1, 0.2 and so on, and all values in between. A modem converts between these two forms. It modulates an analog carrier signal to encode digital information and also demodulates such a carrier signal to decode the transmitted information. This is why modem is an acronym of modulator demodulator. The goal of this process of modulation, demodulation, is to produce a signal that can be transmitted easily and decoded to reproduce the original digital data. Now, what they have written is, मॉडेम का काम क्या है, हमारे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, पीसी को, कंप्यूटर को, मोबाइल को, मशीन को क्या समझ में आता है, डिजिटल लैंग्वेज ऑफ ऑन एंड ऑफ और ज़ीरो एंड वन. ठीक है, तो ये बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है. 0 मतलब कोई करंट नहीं और 1 मतलब फुल. ठीक है, लेकिन जब हम लोग को वायर से भेजना है या फिर टेलीफोन लाइन से भेजना है, तो उस समय हमको क्या भेजना है, एनालॉग सिग्नल्स भेजने हैं. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो डिजिटल फॉर्म में है, तो डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब वापस आएगा तब एनालॉग सिग्नल आएगा हमारे पास, जब हम रिसीव करेंगे वापस उसको डिजिटल में कन्वर्ट करोगे तभी हम उसको पीसी में या मोबाइल में या कंप्यूटर में दिखा सकते हैं. तो ये जो डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल कौन करता है, मॉडेम करता है. ठीक है, मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट्स, डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेट्स. तो मॉड्यूलेटर जो है वो डिजिटल टू एनालॉग करेगा और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस सिग्नल बोलते हैं. तो डिस्क्रीट 0 और 1 का जो ऐसे स्क्वायर डिस्क्रीट सिग्नल को हम कंटिन्यूअस सिग्नल में डालते हैं. यहाँ पे तुमको क्या बताया कि जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे तुम्हारे घड़ी में सपोज एनालॉग घड़ी है, तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारे अलग अलग उसके वैल्यूज हैं. ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज को दिखा रहा है. लेकिन डिजिटल क्या करता है, सीधे 1 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, फिर 3 दिखाएगा, फिर 4 दिखाएगा. ये जो पॉइंट्स है ये डिजिटल नहीं दिखाता है. तो एनालॉग जो होता है वो वैल्यूज के बीच की जो वैल्यूज है, जैसे एनालॉग वॉच देखे होंगे जिसपे नीडल होता है, तो उसमें वो बीच के टाइमिंग को भी वो दिखाता है. तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, all these processes are performed by modem at extremely high speeds. The speed of the modem depends upon the number of available access line and the technology of the modem. The amount of data that can be sent in a given unit of time is usually expressed in bits per second or bytes per second.
ठीक है, कितना डाटा वो भेज रहा है, और बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि हम जब भी कुछ डाउनलोड कर रहे हैं हमको तो पता ही नहीं चलता है, और हम मोबाइल में उसके कंटेंट को, कोई भी बुक डाउनलोड कर रहे हैं, एक्चुअली आता किस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में आता है, और इसमें डिजिटल में कन्वर्ट होके फिर पीसी और लैपटॉप के अंदर जाता है, मॉडेम कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज RJ45, short form of registered jack 45, is an 8 wired connector that is used to connect computers on a local area network। जब भी हम लैन कनेक्शन करते हैं, स्कूल में तुमने देखा होगा सारे कंप्यूटर्स लैन से कनेक्टेड है, तो वो कैसे कनेक्टेड है, वो सारे RJ45 से कनेक्टेड है, especially Ethernet। RJ45 connectors look similar to the RJ11 connector used for connecting टेलीफोन इक्विपमेंट्स, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, वाइट छोटा छोटा दिखा दूंगी एक दिन क्लास स्कूल में, बट दे आर समवॉट वाइडर। Next is Ethernet card. Ethernet card is a kind of network adapter and is also known as network interface card. These adapters support the Ethernet standard for high-speed network connections via cables. An Ethernet card contains connections for either coaxial or twisted pair cables or even for fiber optic cables. ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के लिए हम सेम चीज़ है ये इथरनेट कार्ड, और नेटवर्किंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये दिख भी रहा है तुमको। Newer Ethernet cards are installed usually by the manufacturer inside the desktop computers that resemble credit cards, are readily available for laptop and other mobile। आजकल इनबिल्ट आता है, पहले हम लोग बाहर से लगाते थे कार्ड को खरीद के, आजकल पूरा इनबिल्ट रहता है हमको कुछ करने की, क्योंकि इंटरनेट सबको यूज़ करना है, नेटवर्किंग सबको करना है, तो मोबाइल, लैपटॉप, पीसी सब में ये आजकल इनबिल्ट आता है। These cards conveniently can be put into slots on the side और फ्रंट ऑफ द डिवाइस। इसको हम लोग पहले क्या करते थे कि स्लॉट्स बने रहते थे मदरबोर्ड में, उसमें हम लोग इसको डाल देते थे। Though they look more like small boxes like than cards, external USB Ethernet adapters also exist. These are a convenient alternative to PCI cards for desktop computers and also commonly used with video game consoles and other consumer devices lacking expansion slots। हम अलग से भी लगा सकते हैं। USB जो पॉइंट होता है, देखे होंगे कि आजकल जो यूनिवर्सल सीरियल बस, उसमें क्या है, उस पोर्ट में हम कीबोर्ड को भी लगा सकते हैं, माउस को भी लगा सकते हैं, कोई भी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस को हम लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन उसका USB पोर्ट होता है, तो आजकल उसमें भी आने लगा है। Ethernet cards may operate at different network speeds depending on the protocol standard they support. Old Ethernet cards were capable only of 10 Mbps maximum speed offered by Ethernet originally. Modern Ethernet adapters can support the speed of up to 100 Mbps. Fast Ethernet standards are also available now that offer speeds up to 1 Gbps, gigabits per second. So it is called gigabit Ethernet। ठीक है, तो डेली डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोग के समय था, आजकल इनबिल्ट है, पूरा उसके अंदर ही है, तुमको कुछ नहीं दिखेगा, ना तो खरीद के लगाना है, कुछ नहीं करना है, तुम सीधे जाके लैपटॉप खरीदो, सब कुछ उसके अंदर। पहले हम लोग पीसी खरीदते थे, फिर हमको ज़रूरत पड़ता था एनिमेशन के लिए, वीडियो के लिए, तो अलग अलग हमको ऑडियो एडाप्टर, वीडियो एडाप्टर, गेम खेलने के लिए अलग लगाना पड़ता था, सब चीज़ के लिए, इंटरनेट के लिए नेटवर्किंग कार्ड अलग से हमको खरीद के लगाना पड़ता था। आजकल सब कुछ उसी में आने लगा है। नेक्स्ट, स्विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विच को मार्क कर लो क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही। A switch is a device that is used to break a network into different subnetworks called subnet or LAN segments. This prevents traffic overloading on the network. Switches are another fundamental part of many networks because they speed things up. They allow different nodes of a network to communicate directly with one another
in a smooth and efficient manner. In simple terms, a network switch is a small hardware device that joins multiple computers together within one local area network. तो ये क्वेश्चन में आता है कि सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर. तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? स्विच रहेगा. एक लोकल एरिया नेटवर्किंग में लैन में हम सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? तो आंसर लिखोगे स्विच. नेटवर्क switches appear nearly identical to network hubs, but a switch generally contains more intelligence than a hub. ये एग्जाम में आता है. Why switch is called a intelligent hub? क्यों बोला जाता है? We can say that a switch is an intelligent hub and is obviously more expensive than a hub. Unlike hubs, network switches are capable of inspecting data packets as they are received, determining the source and destination device of each packet and forwarding them appropriately. मतलब जिस पैकेट को जिस कंप्यूटर में जाना है तो सोर्स और डेस्टिनेशन उसको पता रहता है और वो सीधे उसी पैकेट को उसी डेस्टिनेशन डिवाइस में भेज देता है. By delivering messages only to the connected device intended, a network switch conserves network bandwidth and offers generally better performance than a hub. हब से हमेशा स्विच बेटर है. आजकल तो हब दिखता भी नहीं है. हम लोग के समय दिखता था, लैब में लगे रहते थे, लेकिन आजकल हम हर जगह स्विच ही लगाते हैं और वो बेस्ट होता है. इसमें दिया ही है इसमें कि अ नेटवर्क डिवाइस कंजर्व्स नेटवर्क बैंडविड्थ एंड ऑफर जनरली बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं. दूसरा क्या है? जिस डिवाइस को वो पैकेट या इंफॉर्मेशन भेजना है उसी डिवाइस को वो भेजता है. ये दिखता ऐसे है, ये देखे होगे तुम लोग. Mainstream Ethernet network switches support either 10 or 100 Mbps fast Ethernet or Gigabit Ethernet 10, 100 or 1000 standards. Switches that provide a separate connection for each node in a company's internal network are called LAN switches. हमारे कंप्यूटर लैब में ये वाला तुम देखे हो, LAN switch. एक बॉक्स लगा हुआ है पीछे जिसमें ऐसे कनेक्शन किया हुआ है. Especially a LAN switch creates a series of instant networks that contain only the two devices communicating with each other at that particular moment. ठीक है, रिले की तरह काम करता है. जैसे मेरे को राउटिंग करना है, मेरे को इस डिवाइस से इस ट्रांसमीटर से उस रिसीवर तक भेजना है, तो वो कनेक्ट हो जाता है और उसी डिवाइस को वो चला जाता है. Switches are commonly used in home networks and in small businesses. आजकल स्विच जहाँ पे भी एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, हर जगह हम स्विच लगाते हैं. They need not be monitored or configured using external software applications. They are easy to set up and require only cable connection. खाली तार चाहिए, इसमें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें मॉनिटरिंग की ज़रूरत. अच्छा, अब रिपीटर भी इम्पॉर्टेंट है. रिपीटर ज़्यादा 100 मीटर का जब डिस्टेंस हो जाता है, 100 मीटर से ज़्यादा, तब क्या होता है ना, सिग्नल डिमिनिश होने मीन्स वीक होने लगता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है. तो इसीलिए 100 मीटर के बाद हम एक रिपीटर लगाते हैं. अ रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल, amplifies it and then retransmits it on the network so that the signal can cover long distances. Network repeaters regenerate incoming electrical, wireless or optical signals. An electrical signal in a cable gets weaker with the distance it travels due to energy dissipated in conductor resistance and dielectric losses. ठीक है, तो लॉस जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में वीक हो जाता है, क्योंकि लॉस और रेजिस्टेंस के कारण जो भी वीक हो जाता है, उस सिग्नल को वापस अपने ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं. सिमिलरली अ लाइट सिग्नल ट्रैवलिंग थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर सफर्स एटेन्यूएशन ड्यू टू स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन. With physical media like Ethernet or Wi-Fi, data transmissions can only span a limited distance before the quality of the signal degrades
Repeaters attempt to preserve signal integrity by periodically regenerating the signal and extend the distance over which data can safely travel. ठीक है, तो रिपीटर हम वहाँ पे लगाते हैं जब तक सिग्नल गायब नहीं हो जा रहा है, मीन्स जैसे वीक होता है हम रिपीटर लगा के वापस उसको ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट किए. जो टावर दिखता है तुम लोग को, ये सारे इसमें रिपीटर्स लगे हुए हैं. Actually, network devices that serve as repeaters usually have some other name. Active hubs, for example, are repeaters. Active hubs are sometimes also called multiport repeaters, but more commonly they are just hubs. In Wi-Fi, access points may function as repeaters. Means हम लोग आजकल जो वहाँ पे भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें हमने रिपीटर लगाया हुआ है. मीन्स वो सिग्नल को अगर वीक भी हो जाए तो सिग्नल को रिस्टोर करके रीजनरेट करके वापस ओरिजिनल बना के उसका डेटा इंफॉर्मेशन तुमको दिखाएगा. A repeater cannot do the intelligent routing performed by bridges and routers. It cannot filter the traffic to ease congestion and also cannot work across multiple network architectures. रिपीटर का काम होता है खाली एम्पलीफाई करना. रिपीटर एक इंटेलिजेंट रूटिंग का काम नहीं कर सकता है जो कि राउटर करता है. राउटर का काम क्या है कि उसको रीजनरेट करके फिर जिस कंप्यूटर में देना है, जिस नेटवर्क में भेजना है, एक ब्रिज की तरह काम करता है और फिर उसी नेटवर्क में उसमें नेटवर्क में भेज देता है वो सिग्नल. ठीक है, ये राउटर का काम है. तो रिपीटर हो गया, रिपीटर एम्पलीफाई करता है. उसके पहले हमने स्विच पढ़ा था, स्विच कनेक्ट करता है सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, और ये एम्पलीफाई करके सिग्नल को रीजनरेट करता है. चलो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस. इसका जो है इसमें तुम पिक्चर्स भी देख लो. देखो ये तुम्हारा नेटवर्क डिवाइस है, ये तुम्हारा पहला जो तुमने किया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर हब किया तुमने, नेक्स्ट स्विच किया, रिपीटर किया. ठीक है, अब हम लोग राउटर कर रहे हैं, फिर गेटवे करेंगे. तो पहले राउटर कर लेते हैं. A router is a network device that works like a bridge to establish connection between two networks, but it can handle networks with different protocols. देखो क्वेश्चन में पूरा ये दे देगा और बोलेगा which network device it is. अब तुमको अच्छे से देखो, can handle network with different protocols, इसको याद रखना है तुमको, क्योंकि वो एक लाइन में लिखा रहेगा कि दो नेटवर्क को जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है, तुम्हारा स्विच भी जोड़ रहा है, तुम्हारा ये भी रिपीटर भी जोड़ रहा है, सब जोड़ रहे हैं. फिर डिफरेंस कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे कैन हैंडल नेटवर्क्स विद डिफरेंट, अलग अलग प्रोटोकॉल्स होने के बावजूद भी वो उसको कनेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ राउटर कैन लिंक एन इथरनेट नेटवर्क टू अ मेन फ्रेम और टू इंटरनेट. If the destination is unknown to the router, it sends the traffic to another router which knows the destination. The data is sent to the router which determines the destination address using logical address and then transmits the data accordingly. Hence, routers are smarter than hubs and switches. हम लोग का जो लगा हुआ है वो राउटर है, एक्चुअली में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट भी कर रहा है और उसके बाद वो चेक कर रहा है कि किस रूट में जाना है, कहाँ किस नेटवर्क में ये सिग्नल भेजना है. ठीक है, यूजिंग अ राउटिंग टेबल दैट स्टोर्स कैलकुलेटेड पाथ्स, routers make sure that the data packets are traveling through the best possible paths to reach their destinations. If a link between two routers fails, the sending router can determine an alternate route to keep traffic moving. Routers provide connectivity inside enterprises, between enterprises and the internet, and within an ISP or internet service provider. Routers can be wired or wireless. Routers बहुत तरीके के आते हैं, wired और wireless सब आते हैं. मैं इसका जो एनिमेटेड है उसको बाद में नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी. उससे क्या होगा ना, तुमको और अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, तो राउटिंग के लिए हम राउटर्स यूज़ करेंगे.
इसमें तुम्हारा जो सारे कंप्यूटर्स को तो जोड़ ही रहा है ये, प्लस किस नेटवर्क, दो नेटवर्क को भी ये कनेक्ट करता है. नेक्स्ट, गेटवे. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये सारे डिवाइसेस का मैंने देखा है एक एक मार्क का क्वेश्चन आता ही है, इसको थोड़ा अच्छे से करोगे. गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट एस्टैब्लिशेस एन इंटेलिजेंट कनेक्शन between a local network and external networks with completely different structures. It connects to dissimilar networks. ठीक है? It connects to dissimilar networks. In simple terms, it is a node on a network that serves as an entrance to another network. जैसे सपोज SBI है, रेलवे है. SBI का अलग नेटवर्क है, रेलवे का अलग नेटवर्क है. अब मेरे को टिकट काटना है तो मैं टिकट SBI के उससे अकाउंट से मैं पे करना चाहती हूँ जो टिकट का फेयर है. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिसिमिलर नेटवर्क्स को हम जोड़ रहे हैं. In simple terms, it is a node on a network that serves as an entrance to another network. ठीक है, आ रहा है समझ में. एक दूसरे ही नेटवर्क में जब हमको जाना है या डेटा भेजना है तब हम वहाँ पे गेटवे होके फिर जाना पड़ेगा. The computers that control traffic within your company's network or at your local internet service provider ISP are gateway nodes. A network gateway can be implemented completely in software, completely in hardware, or as a combination of both. ठीक है, गेटवे में पूरा हार्डवेयर भी हो सकता है, पूरा सॉफ्टवेयर, या दोनों का कॉम्बिनेशन. In the network for an enterprise, the computer server acting as a gateway node is often also acting as a proxy server and a firewall server. फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. मीन्स बाहर से कोई अगर हमारे सिक्योरिटी को ब्रेक करके हमारे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट, कुछ भी डिस्ट्रॉय, कुछ भी करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, फिशिंग करना चाह रहा है, तो आजकल हम लोग फायरवॉल यूज़ करते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है. Here a proxy server is a node that is not actually a server but just appears to be so. And a firewall is a system designed to prevent unauthorized access to and from a private network. ये हम लोग सिक्योरिटी में करेंगे ही, ये एक मार्क का ये क्वेश्चन आता ही है कि फायरवॉल क्या है. प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क. कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता. A gateway is often associated with both a router which knows where to direct a given packet of data that arrives at the gateway and a switch which furnishes the actual path in and out of the gateway for a given packet. दोनों काम कर रहा है. It expands the functionality of the router by performing data translation and protocol conversion. इसमें और क्या क्या काम होता है, इसमें डेटा ट्रांसलेशन भी होता है और प्रोटोकॉल कन्वर्शन भी होता है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा कि कौन करता है डेटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्शन, कहाँ, मीन्स किस डिवाइस के थ्रू कहाँ पे होता है, तो गेटवे लिखोगे. यू विल समटाइम्स सी द टर्म डिफॉल्ट गेटवे ऑन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन्स इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. In computer networking, a default gateway is a device that passes traffic from the local subnet to devices on other subnets. The default gateway often connects a local network to the internet, although internal gateways are local network for local networks also exist. ठीक है, तो हम लोकल नेटवर्क के लिए हम इंटरनल गेटवेज यूज करते हैं. नेक्स्ट, तुम्हारे कंप्यूटर में अगर वाईफाई कार्ड है तो वाईफाई तुम यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, वाईफाई कार्ड दिया हुआ है. वाईफाई कार्ड मेरे को लगता है आज तक तो पूछे नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग कर लेते हैं. लेकिन रिपीटर, राउटर, गेटवे, स्विच, हब बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लोगे. Wi-Fi cards are small and portable cards that allow your desktop or laptop computer to connect to the internet through a wireless network. Wi-Fi transmission is through the use of radio waves.
The antenna transmits the radio signals, and these signals are picked up by Wi Fi receivers such as computers and cell phones equipped with Wi Fi cards. These devices have to be within the range of a Wi Fi network to receive the signals. The Wi Fi card then reads the signals and produces a wireless internet connection. Once a connection is established between user and the network, the user will be prompted with the login screen and password if the connection being established is a secure कनेक्शन. अगर नॉट सिक्योर है तो फिर पासवर्ड और वो सब नहीं पूछता है, लेकिन नॉर्मली तुम वाईफाई अपने घर का सिक्योर करके रखोगे, और नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारे नेबर्स सब लोग क्लास सुबह से तुम्हारे ही उसमें अटेंड करेंगे और पूरा डेटा खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट, Wi-Fi cards can be external or internal. If a Wi-Fi card is not installed in your computer, you may purchase a USB antenna attachment and have it externally connected to your device. Many new computers, mobile devices, etc. are equipped with wireless networking capability and do not require a Wi-Fi. आजकल सभी जगह पे वायरलेस है. आजकल जितने भी डिवाइस तुम्हारे पास, जितने भी मोबाइल, सब में वायरलेस है और किसी में एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड की ज़रूरत ही नहीं. However, it is important to understand that the Wi-Fi connection only exists between the device and the router. Most routers are further connected to a cable modem which provides internet access to all connected devices. आजकल हम लोग मोबाइल का वाईफाई ऑन करके फिर सपोज हमको कोई गूगल होम यूज़ करना है या कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करना है, तब हम वाईफाई ऑन करके हम उसके थ्रू कनेक्ट करते. तो ये सारे डिवाइसेस हो गए जिसमें गेटवे आएगा ही पेपर में, क्वेश्चन पेपर में. मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ एक बार. राउटर कभी कभी पूछते हैं, रिपीटर और स्विच केस स्टडी में रहता ही है. ठीक है, एक क्वेश्चन रिपीटर का और एक क्वेश्चन स्विच. तो इसको याद कैसे रखोगे? सारे कंप्यूटर्स को अगर किसी डिपार्टमेंट का दे देंगे और बोलेंगे सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आंसर में लिखोगे स्विच. अगर लिखेंगे कि कहाँ कहाँ रिपीटर लगाना है, तो डिस्टेंस देख लोगे क्वेश्चन पेपर का. मीन्स जो भी तुम्हारे उसके हैं, देखो अभी दिखा देती हूँ मैं नेटवर्किंग के क्वेश्चंस. इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर देखोगे तुम, किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओपन करो. ठीक है, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी. अ कंपनी इन Mega Enterprises has 4 wings of buildings as shown in the diagram. 4 wings है, W1, W2, W3, W4. Center to center distances between various buildings. अब सारे buildings का दिया हुआ है. अब इसमें तुमको 100 मीटर से ज़्यादा कौन कौन सा है? W4 से W3, W3 से W2. मीन्स अगर तुम ये वाले कनेक्शंस करते हो तो तुमको रिपीटर लगाना कंपलसरी हो जाएगा. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिया हुआ है. अब इसके क्वेश्चन के आंसर्स हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन. केबल लेआउट फर्स्ट में नॉर्मली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि स्टार और बस दोनों का अलग अलग एडवांटेज है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें कि फॉर द अबव कनेक्शंस, मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शंस. अगर स्टार लगाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें केबल लेआउट पूछा है.